हम बात करते हैं जी उमैर से। हेलो उमैर, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी गालिब भाई की हाल चाल ने ਤੁਹਾਡੇ? ठीक ठाक भाई। हाँ जी, क्या बात करें? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ याद है कि नहीं। नहीं, तकरीबन मुझे दो नहीं तीन याद। हफ्ते पहले अगर आप उर्दू में बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ। ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ अच्छा। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। अच्छा जी, क्या सवाल पूछा था? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਵਲ ਹੋ? अच्छा चलो यार, सही गल है। ठीक है, तुसी रुको बंदे हो गालिब ना? भाई, इजाजत दे हाँ। दो नहीं नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट, सिर्फ जवाब इजाजत दो तो चाहिए, जवाब जवाब दे चाहिए। ऐसा यार मेरी बात सुनो, मैं एक यार मिनट ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲullah ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਆ। ਗਾਲਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ हाँ। ਦੇਣਾ। नहीं 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 ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਸੂਲullah ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ नहीं, ਰਸੂਲullah मैं ਨੇ ਅਸੀਂ जवाब दे ਉਸੇ देता ਤਰ੍ਹਾਂ हूँ, ਦੇ। कोई मसला नहीं। नहीं ਯਾਰ नहीं ਤੁਸੀਂ नहीं ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣ। नहीं यार ਬੋਲ मेरी यार गल जो सुनो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਉਹੀ ਕਰ ਆ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ना ਚਵਲ ਸਨ। यार ना इस तरह दे ना कहो, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਵਲ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਏਗੀ ਨਾ यार। एमएचएस छोड़ते हैं। ठीक है, छाड़ रसूल जो रसूल अल्लाह वही है हम बंदे। वो अगर बंदे हैं तो हम बंदे हैं, वो अगर चवल हैं तो वो हम चवल हैं। ठीक। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ क्या तो कौन फिर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। एक सेकंड ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ। अच्छा, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ पहले नहीं। सर जी आप पहले हमें चवल को डिफाइन कीजिए कि आप चवल क्या चीज है, डिफाइन करके दिखाइए चवल किसे कहते हैं। इब्ने अब्दुल्ला नु कहते हैं सर, इब्ने हाँ जी। अब्दुल्ला नु आंदे ने चवल। नहीं, फिर हम देखते हैं कि चवल निकलता कौन है। चलिए डिफाइन कीजिए कि चवल क्या है, चवल किसे कहते हैं। अब जब डिफाइन कर लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि चवल कौन है। नहीं है, जी, शुरू। डेफिनेशन तो माइक आप चलो 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 दबाए डिफाइन करो। चलो यार, चवल चवल की आज एटमोलॉजी पूछ लेते हैं। चलो बताएं यार। Exactly. यार हाँ। देखो, डेफिनेशन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਵਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो चलो दसो ना फिर। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਲਾ ਲਓ। हाँ ना, तो चवल क्या होता है बताओ ना यार। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਆਖੀਦਾ, ਅਨੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चवल के annoying चलो अभी अनोइंग कोई लेके चल नहीं, लेते चवल अनोइंग तो नहीं ਹੁੰਦਾ यार, ਚਵਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਵਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਵਲ ਨੇ ਜੀ। ਚਵਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਕਿ ਚਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿੰਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਰਸਨ? ਦੁਨੀਆ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। नहीं तो यार हम दसो ना, जिसको मिले हो, अब एक मिनट ठहरो, मिले नहीं हो, एक मिनट में चेष्टा करो। दुनिया में आज तक सबसे रीजनेबल बंदा कौन था बताओ यार। देखो वही गल आ गई ना कि मैं ते हर बंदे नूं नहीं मिलिया। रीजनेबिलिटी टेस्ट करन लई जिहदे बारे जानना पैंदा है ना। तुसी एक बंदे नूं जानदे हो, तुसी उदों जज करदे हो ना कि ओ नहीं अगों फिलासफी ना मेरा वीर मैनूं दस एवें ही। दुनिया में सबसे रीजनेबल बंदा उमैर मियां आपकी नजर में कौन है? ये सिर्फ सवाल पूछा है, चाहे मिले हो चाहे नहीं मिले, चाहे उसके साथ बात की या नहीं की, आपकी नजर में है कौन है वो बता दो मुझे। यसु है, मोहम्मद है, राम है, कौन है बताओ? मैं आप हाँ। आप? हाँ मैं आप रीजनेबल, यानी मोहम्मद और यसु से बड़े हो? नहीं, मैं कंपैरिजन कीता ही नहीं। तुसी सवाल पूछा मैं जवाब देता।
गालिब पूछा वक्त जाया कौन हो रहा है। है दस सानू मैं हाँ ये मैं मतलब यार मैं ये क्या मैं खेल रहे हैं हम, सही इसको बात है वही भेजने से जिस पहले नहीं इससे नहीं भेजने से नहीं पहले मैं इनसे एक मैं बात कर लूं बाकी मैं वैसे 1 मिनट चाहिए तो इजाजत दे दें यार मेरी बात सुनो मेहर भाई मेरी बात सुनो यार आपका मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है चलें आप मुझे बताएं मोहम्मद को मानते हैं आप मैं हम तो नहीं मानते चले हम तो कहते नहीं नहीं था आप मानते नहीं हैं नहीं वो नहीं बताएगा, मैं वो एक कावड़ वो आदमी चले है, वो नहीं बताएगा, नहीं मैं एक वो मैं एक वो सवाल नहीं बताएगा। जी 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 सबसे असल मैं में यार पता है जी जी पूछे क्या भाई प्लीज मैं एक सवाल सामने रख देता हूँ। देखिए, और मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं कोई क्या कहते हैं मजाक में बात नहीं कर रहा। बात यह है कि सवाल यह है कि रीजनेबल आदमी वो होता है जो क्या वो होता है कि जो अगर किसी से डिसएग्री कर रहा हो और किसी और का व्यू या ओपिनियंस या उसके आर्ग्यूमेंट्स उसको अनोइंग लग रहे हों आपका लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, तो वो आकर उससे उसके लॉजिक और उसके पॉइंट्स और उसके आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस करता है या एक ऐसा सवाल पूछता है जो कि उसके आर्ग्यूमेंट्स और पॉइंट्स से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। रीजनेबल आदमी कौन होता है? आपने सवाल एक ऐसा किया है जिसका गालिब वो के किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यू आर नॉट एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली यू हैव योरसेल्फ प्रूव दैट यू आर नॉट रीजनेबल अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप वक्त के साथ साथ रीजनेबलनेस सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस बात का समझ आ गई है। हाँ, इस इस तरह भाई के को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इसने सीखा हाँ, कुछ नहीं है, तो बस आके बात करना, जुबान चलाना सिर्फ काम है, वो किया है, हाँ, सीखा कुछ नहीं है, अफसोस ये के साथ ये बोला कहना पड़ता है। ये हाँ इजाजत हो तो बोलो नहीं नहीं ठीक है यार, बोल लिया अब आपने, ठीक है हम आगे चलते हैं। आप तो ऐसी ही बातें करोगे, आपको दर्द हुआ है किसी बात से, अब मुझे ये नहीं पता कि आपको इस्लाम वाली बात से हुआ है या क्रिश्चियनिटी वाली से, क्योंकि मुझे आपसे कुछ ना थोड़ी सी बू जो है ना वो ज्यादा ही कुछ यसु के सिपाही वाली भी आ रही है, ठीक है, तो वो लोगों को नहीं समझ आएगी, मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप मुसलमान होते ना तो आपने तड़प के बोलना था मोहम्मद पे, ठीक है। तो भैया अगर आपको यसू की बात पे तकलीफ हो रही है और आपको हो रही है तो यार मेरे भाई जाके बाइबल पढ़ो ध्यान से, और अगर आपको कुरान की बात पे हो रही है तो कुरान पढ़ो ध्यान से। हम कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं करते अगर जो आप कि कुरान या बाइबल हम पढ़ेंगे कोई ऐसी, हाजी भाई एक मिनट, हम ऐसी कोई चवल यहाँ पे नहीं मारते जो आपकी मुकद्दस किताबों में नहीं मारी गई, ठीक है। हम वो ही बताते हैं आपको जो चवलें वहां पे लिखी हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई जाके ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या चवलें वहां पे लिखी हैं, और जरा उन लोगों को समझने की कोशिश करें जिन्होंने ये चवलें मारी हैं, ठीक है। तो भैया अच्छा, आपको चवल की डेफिनेशन हमने बता दी है कि चवलें इन किताबों में और आपके मजहबों में मारी गई हैं इंसानियत के खिलाफ। कहीं खुदा जो है वो पूरे के पूरे मिस्र के पलौठे मार देता है, कहीं मोहम्मद जाता है तो लोगों के फलां बच्चे मार देता है, लोगों को लौंडियां गुलाम बना देता है। बाइबल में और कुरान में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी चवल है जो हम मारते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब आप हमें चवल कह लें या जो भी कह लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात जरूर पता चलती है कि आपको यकीनन दर्द हुआ इस बात का जो हम बातें करते हैं। और यही बात आपको बता दूं, इसीलिए तो हम ये बातें करते हैं कि आप जैसे लोगों के जहन को तकलीफ पहुंचे तो तब वो सही डायरेक्शन में सोचना शुरू होगा, वरना आप उसी खुडे लाइन लगे रहेंगे जिधर आपको पिछले हजारों साल से लोगों ने लगाया है। तो भैया सोचना सीखो, ठीक है। आपके इस तरह के क्वेश्चन से, ट्रोल क्वेश्चन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो आप जैसे 10 आए चले गए, मैं 3 साल से इसलिए इधर बैठा हूं ना कि आप जैसे बेचारे 100 आते हैं और उनके पास कोई बात का जवाब नहीं होता, ठीक है। आपके पास भी नहीं है, आपसे जो हमने सवाल किया उसका तो कोई जवाब नहीं है, और आपकी बात का तसल्ली बख्श जवाब मैंने दे दिया, ठीक है। तो जाके इसे दोबारा रिमाइंड करके सुनना, ठीक है। बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली और अगर आप बाइबल और कुरान पढ़ लेंगे तो आपको चवल की डेफिनेशन ही पता चल समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसमें चवलें कौन मार रहा है उसका भी पता लग जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये करना है कि 2 किताबें पढ़ें, कुरान पढ़ें और बाइबल पढ़ें, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट चवल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।